Hi students, welcome to 11th class. In 11th class we have to learn two books. One is Hornbill and the other one is Snapshots. Today we are going to learn the first lesson from Hornbill, named The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh, Indian writer. Book Hornbill. Lesson 1, The Portrait of a Lady. Without book it is very difficult to learn. So you have to do one thing. If you have a book, keep it with you, and if you have no book, you download from Google and try to learn something up to the time when the book will come to you. So if you continue, then collect your books immediately. It will be available from the school campus, or you can take it from the bookseller. The Portrait of a Lady, Chaya Chitra, picture of a lady. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Now you are in 11th class. No need to give special explanation in Hindi. Simple language is there, so no need to translate into Hindi. Try to read the lesson and make your own translation. That is the way to learn. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. 20 साल से जैसे भी देखता हूँ वैसे है, no change. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं वो पहले सुंदर थी, उसके एक पति, my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. ड्राइंग रूम में मेरे ग्रैंडफादर के फोटो है. मैंटल पीस के उधर अबव, मैंटल पीस है अलमारी. He wore a big turban and loose fitting clothes. वो पगड़ी लगा, loose fitting clothes से. His long white beard covered the best part of his chest. उसका दाढ़ी बढ़कर सीने तक आगे. And he looked at least 100 years old. फोटो में तस्वीर देख के लगता है कि वो करीब 100 साल के. He did not look the sort of person who would have a wife or children. उसको देख के कोई नहीं कहेंगे उसका शादी हुआ है और संतान भी है. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उसको देख के ऐसा भी लगता है कि उसका कई पोते पोती भी है. As for my grandmother,
being young and pretty. The thought was almost revolting. लोग कहते थे ना वो जवानी में तो बहुत सुंदर थी, उसी को लेके कंपेयर करें तो थोड़ा कुछ ऐसी बात आ जाती. She often told us of the game she used to play as a child. वो अपनी बातें बताते थे, वो बच्चों के साथ खेला करते थे. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. उसको देख के कभी ऐसा लगता ही नहीं कि वो औरों के साथ खेला भी करती थी. फिर हम उसको कहानी का रूम में टाल दिया जो भविष्यवक्ता लोगों ने कहा करता था. प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी करने वाले. She had always been short and fat and slightly bent. कद से छोटी थी. She had always been short and fat, मोटी भी थी. And slightly bent, हल्की सी झुकी हुई थी. लेडीज एक समय के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा एज में आने के बाद तो शरीर झुकने लग जाते. कहते हैं ना उसका स्पाइनल कोड नकली है. हाँ, स्पाइनल कोड ओरिजिनल नहीं है. आदम और ईव की कहानी में जाएं तो आदम का पसली से एक निकाल के औरत का सृष्टि किया है और इसलिए औरत कमज़ोर है, उसका स्पाइनल कोड कमज़ोर है. इसलिए लोग कहते हैं कि लेडीज़ इसलिए बेंड हो जाए. इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब आदमी बेंड नहीं होता. आदमी से कंपेयर करके बताएं तो लेडीज़ ज़्यादा बेंड हो जाते हैं ओल्ड एज में. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसका चेहरा पूरा झुर्रियाँ चढ़े हुए नजर आता है ऊपर से नीचे तक. And no, we were certain she had always been as we had known her. यूं भी नहीं कर सकता है, जैसे हम जानते हैं और वैसे ये वो, ज़्यादा फर्क तो दिखाई नहीं दे. Old, so terribly old that she could not have grown older. वो इतनी एजड थी, देख ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा एजड हो गई क्योंकि वो पहले से एजड है. And had stayed at the same age for 20 years. और पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा. She could never have been pretty. अभी का शक्ल देखे ऐसा लग रहा है कि बस वो कभी सुंदर रही ही नहीं. बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल. लेकिन सुंदर तो थी. यूं देखा जाए तो सुंदर है, लेकिन जैसे लोग कहा था वो बहुत सुंदर थी ऐसा तो लगी नहीं रहे. है तो सुंदर, लेकिन लोग जो कहते थे ना शी वॉज यंग एंड प्रेटी, उस बात से हम सहयोग नहीं करेंगे. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the butts of her rosary. वैसे वो घर के आंगन में घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती है, एक हाथ कमर पे रख के दूसरा हाथ में जपमाला का मोती पकड़ के ये घर के चारों तरफ घूम. रोसरी यानी जपमाला, उसका जो बट्स होता है एक एक मतलब मोती होता है तो उसी को बट्स कहते हैं. तो इस तरह से वो चलती. एंड शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट. बिल्कुल साफ सुथरी सफ़ेद कपड़े में घूमते. लेडीज़ परमानेंट सफ़ेद कपड़े पहनने का मतलब है वो विधवा है, विडो. इसका मतलब ये तो नहीं है कोई लड़की बस वाइट कपड़े पहन के आए तो उसको ये कहें हाँ विधवा आ रही. नहीं, कुछ लोग वाइट कपड़े पहन के आते हैं तो उसको भी नहीं कहें. अपना सिस्टम के आधार पर 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग वाइट कपड़े में आने के लिए बस इंस्ट्रक्शन देता है. अगर कोई टीचर, लेडी टीचर वाइट कपड़े पहन के आए तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ ये विधवा है. हर जगह में
ये मीनिंग नहीं लेनी। ब्लैक कपड़ा मृत्यु का निशानी है, तो कोई ब्लैक कपड़े में देखा तो ये नहीं सोचना तो ये मरा हुआ है और डराने आया, ऐसा भी नहीं। कपड़े के हिसाब से मतलब ये लोग मतलब आइडिया अलग अलग लगाते। कोई पीला कपड़ा पहन के आ जाए तो ये बोल देते वो बड़ा भक्त है ईश्वर के, ऐसा भी नहीं। कुछ जगह में हमें देखने को मिलता है तो लोग सफ़ेद कपड़े ही पहनते हैं, विशेष करके जो नन्स वगैरह होता है, कोई सा भी धर्म का हो, वो वाइट कपड़े पहनते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो विधवा है। अब आइडिया समझ में आ गया होगा ना। ये जो है पक्का विधवा है, क्योंकि यहाँ बताया कि वो इतना ओल्ड है, उसके पति का डेथ हो गया, उसका फ़ोटो कमरे में रख रखा है। ऐसी स्थिति में हम यूँ समझ लें क्या है, वो विधवा है। और ओल्ड एज में लोगों को ज़्यादा भगवान की याद आती, वो भगवान की पूजा करते रहते। Her silver locks were scattered untidy over her pale puckered face. उसका बाल देखो, लोक बाल की चोटी को कहता है, वो सिल्वर है। सिल्वर मीन सफ़ेद, इधर का मतलब उसका बाल पूरा सफ़ेद है और वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है, वो उसका झुर्रियाँ परी चेहरे पर आई रहे। एंड her lips constantly moved in inaudible prayer. उसका मुंह लिप्स देखो वो बड़बड़ाती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, इसका मतलब है वो प्रेयर करती है। मोती जपते, जब माला जपते है तो बोलना पड़ता है कुछ। ये शी वॉज ब्यूटिफुल, वो स्थिति देखा जाए तो वो सुंदर तो है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। प्राकृतिक दृश्य विंटर के महीने में कैसे दिखाई देते, कैसे, हाँ ओस भरे दिखाई देते हैं या धुंधला दिखाई देते, वैसे रूप भाव है, क्योंकि कपड़े भी सफ़ेद, बाल भी सफ़ेद। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. संतुष्टि से रहने वाला, शांति से रहने वाला, शान से रहने वाली ये लेडी, ये हेडिंग में दिखाई दिया, वो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। उसका वर्णन यहाँ बता दिया। हो सकता है परीक्षा में पूछें, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रैंड मदर, और एक्सप्लेन अबाउट ग्रैंड मदर, explain the physical appearance of, or explain the appearance of the lady और grandmother। इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो यही करना है। अब आगे होगा, यही है हमारी जो लेडी, माई ग्रैंड मदर, लेखक के ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। पेरेंट्स सिटी में रहने गए, मुझे ग्रैंड मदर के साथ गांव में छोड़ के गए। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो सुबह सुबह मुझे जगाती थी स्कूल जाने के लिए, तैयार होने के लिए। ये आदत पुराना टाइम में बहुत हुआ करता था, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से कम हो गए। हमें कोई जगाना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि हमें सुबह उठने की आदत नहीं है। लेकिन पुराना टाइम में हम लोग जब पढ़ते थे, बस सुबह 4 बजे उठना, मतलब 4 बजे उठना ही उठना। सबको एक साथ उठा के चल जाते घर वाले, और बाद में हम बीच में सो जाए तो मटका भर के पानी ऊपर पड़ देते। लेकिन आजकल के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करें तो दूसरा दिन घर को छोड़ के चले जाएं तो घर का अंदर शांति नहीं मिलता है, और सोने का टाइम तो ही नहीं देते। वो आजकल के बच्चे सुबह सुबह तक इसलिए सोते होंगे क्योंकि वो रात भर किसी से लगे रहते, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, इसलिए वो लेट सो जाते हैं, वो सुबह उठ नहीं पाते। कुछ लोगों को कोई भी काम नहीं है तो भी वो सुबह उठते ही नहीं है। सर्दी का मौसम आते समय पूछो ही मत,
रजाई से एक बार बाहर आना बहुत महंगा पड़ता है। और इस तरह की आदतें हैं। मेरी ग्रैंड मदर मुझे सुबह जगाते थे और मुझे स्कूल जाने के लिए मजबूर कर रहे थे और तैयार कराते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. सुबह सुबह मुझे तैयार कराते समय वो अपना प्रेयर जोर से गाने का रूम में बोलते थे ताकि मैं भी सीख लूँ। हम ये सब हमारा प्रेयर का जो सिस्टम है, आरती का गाना, सब कुछ औरों से दे के सीखा होगा अधिक से अधिक। औरों के मुंह से निकला हुआ शब्द को आदत में डाल के हम भी सीखा। जो किताबों से पढ़ने और रटने की आदत हमें कदे ही नहीं है। कंपैरिजन करके देखते समय यहाँ के पढ़ाई, तो इस तरह से लोग क्या करते थे और याद करते थे। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं इसलिए सुनता था क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। वैसे मुझे पसंद तो है नहीं इसे, लेकिन ग्रैंड मदर की आवाज़ बहुत प्यारी है और इसलिए मैं थोड़ा बहुत ध्यान से सुनती थी। And then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. और उसके बाद मेरा बैग तैयार करते। आजकल के जैसा बैग नहीं है, उस समय जो भी ले जाना है वो पूरा स्लेट के साथ बांध के हाथ में दे देते। उसमें पेंसिल, पेन, सब जो भी है स्लेट ले जाते। उसमें लिखने का जो भर्ती, उसको यहाँ चौक कहा है, और बोर्ड में लिखने वाला चौक नहीं है, स्लेट में लिखने वाला चौक, सब कुछ एक साथ बांध के। अगर पेन से लिखना है तो पेन हमारे जैसा नहीं है जो पेन आजकल यूज़ करते हैं। पुराने टाइम में बोतल में इंक और उसी का अंदर पेन टच करके वो लिखा करते थे पुराना टाइम में। बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो बार बार उसको डुबकी लगाना पड़ता था बस इंक पॉट के अंदर, वरना तो जितना उसमें पकड़ लिया उसका नोक में वो सूख जाता है। And all in a bundle and handed to me. After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और नाश्ता के लिए सुबह ताज़ा ताज़ा थोड़ी बनाते हैं, बासी रोटी बचा के रख देते और उसी को सुबह पैक करके टिफ़िन में डाल के। टिफ़िन आजकल का जैसा कोई टिफ़िन उस ज़माने में लोग यूज़ नहीं किया करता होगा, जो भी है, क्योंकि खुशवंत सिंह हमसे उम्र से बड़े और इसलिए उनके ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं होगा। एनीवे, आफ्टर ये ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। ब्रेकफास्ट के बाद बासी चपाती जो बचा हुआ है उसको लेके हम स्कूल की ओर जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। और ज़्यादा चपाती लेके जाते थे रास्ते में जो कुत्ते मिलेगा उसको खिलाने के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. ग्रैंडमदर मेरे साथ इसलिए आती थी तो क्योंकि रास्ते में मंदिर पड़ता है। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. उधर के जो प्रीस्ट पुजारी हमें प्रार्थना करने सिखाया। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or द प्रेयर इन ए कोरस। एक साथ सारे बच्चे जो सिखाते वो बोला करते थे, उसको कोरस कहते हैं। माई ग्रैंडमदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। ग्रैंडमदर अंदर जाके
पवित्र ग्रंथ को पढ़ती थी. When we had both finished, we would walk back together. दोनों का पढ़ाई और कार्य प्रेयर पूरा होने के बाद साथ साथ घर जाते थे. This time the village dogs would meet us at the temple door. इस वक्त टेम्पल डोर के वहाँ कुत्ता मिल जाते. They followed us to our home, glowing and fighting with each other for the chapatis we threw to them. कुत्ते को खिलाने की वजह से हमसे दोस्ती हो गया वो, और इसलिए हमें छोड़ने के लिए हमारे घर तक आया करते थे. हाँ, कहते हैं ना कुत्ता वफादार है, उसको खाने के लिए कुछ भी दे दो तो वो कम से कम देने वाले का ख्याल रखता है और परवाह करता है. Let us stop here. Read the lesson, try to understand the meaning and whatever it may be. Okay.